السلام علیکم، لاہور نیوز کے اسٹوڈیوز میں خوش آمدید۔ میرا نام ہے اسامہ بن عبید۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیلات کی طرف بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں شٹر ڈاؤن کی۔ مارکیٹوں اور بازاروں میں کاروباری سرگرمیاں معطل، شہر کے بڑے بازار اور ہول سیل مارکیٹس بند ہیں، جبکہ پرچون بازار اور ریٹیل مارکیٹوں میں کاروبار جزوی طور پر جاری ہے۔ مزید تفصیلات عبدالقادر سے جانتے ہیں جو اس وقت بادامی باغ آٹو پارٹس مارکیٹ میں موجود ہیں۔ جی بتائیے۔ جی بالکل، اس وقت میں بادامی باغ آٹو پارٹس مارکیٹ میں موجود ہوں اور لاہور چیمبر اور تاجر تنظیموں کی جانب سے جو 19 جولائی کی ہڑتال کی کال دی تھی، آج جو ہے اس سلسلہ میں شہر کی تمام ہول سیل مارکیٹس جو ہیں وہ بند ہیں، بڑے بازار بند ہیں، مارکیٹیں بند ہیں، جس کی وجہ سے شہر میں کاروباری سرگرمیاں جو ہیں مکمل طور پر معطل دکھائی دے رہی ہیں۔ صرف ریٹیل مارکیٹس اور برانڈ آؤٹ لیٹس جو ہیں وہ جو ہے وہ کھلے ہوئے ہیں۔ میں اس وقت بادامی باغ آٹو پارٹس مارکیٹ میں موجود ہوں۔ یہاں پہ انجمن تاجران بادامی باغ کے صدر وقار احمد میاں کی جانب سے بھی ہڑتال کی حمایت کی گئی اور ساتھ ہی ساتھ پاسپیڈا جو کہ پاکستان آٹو موبائل اسپیئر پارٹ امپورٹر اینڈ ڈیلر ایسوسی ایشن ہے، اس کی جانب سے بھی اس ہڑتال کی حمایت کی گئی اور تمام آٹو پارٹس مارکیٹ جو ہیں وہ بند رکھنے کا جو ہے وہ اعلان کیا گیا۔ اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ شالم مارکیٹ، بادامی باغ آٹو پارٹ مارکیٹ، برانڈت روڈ سمیت شہر کی تمام ہول سیل مارکیٹیں بند ہیں۔ عمومی طور پر اس وقت جو ہے ان مارکیٹوں اور بازاروں میں رش جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، نہ صرف لاہور بلکہ دیگر شہروں اور علاقوں سے آنے والے خریدار جو ہیں ان ہول سیل مارکیٹوں میں خریداری کے لیے آتے ہیں۔ اس وقت کی صورتحال پر بات کی جائے تو شہر میں ہول سیل جو ہے بند ہے، خصوصی طور پر اکبری منڈی کی جانب سے بھی جو ہے وہ اس ہڑتال میں جو ہے وہ شامل ہوئی اور انجمن تاجران اکبری منڈی کے صدر اظہر اقبال اوان کی جانب سے حمایت کی گئی، جس کے بعد شہر کی سب سے بڑی مرکزی غلہ منڈی جو کہ نہ صرف شہر کے گلی محلوں اور بازاروں کو بلکہ دیگر قرب و جوار کے بازاروں میں بھی جو ہے وہ آٹا، دالیں، چینی اور دیگر اشیاء خورونوش کی سپلائی کا باعث بنتی ہے، وہ بھی مکمل طور پر بند ہے، کسی قسم کا کاروبار نہیں ہو رہا۔ تاجروں کی جانب سے ایف بی آر کو دیے جانے والے اختیارات پر شدید تحفظات کا اظہار کیا اور نئے قوانین جس میں 37AA اور 21S متعارف کروائے گئے ہیں ان کو فوری طور پر واپس لینے کا مطالبہ کیا اور یہ بھی کہا گیا ہے انجمن تاجران کی جانب سے اور تاجر تنظیموں کی جانب سے کہ یہ صرف ایک دن کی ہڑتال جو ہے وہ احتجاجاً کی جا رہی ہے، اگر حکومت نے مطالبات نہ مانے تو یہ احتجاج کا سلسلہ یا ہڑتال کی تحریک جو ہے مزید بڑھائی جا سکتی ہے۔ جی ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ ایف بی آر قوانین کے خلاف تاجروں کی شٹ ڈاؤن ہڑتال، مال روڈ پر واقع مارکیٹوں سمیت شہر کی تمام چھوٹی بڑی مارکیٹیں بند، کاروباری سرگرمیاں معطل۔ تاجر رہنماؤں کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے نافذ کیے جانے والے نئے ٹیکس کاروبار کے لیے نقصان دہ ہیں۔ ایف بی آر کے سیکشن 37AA اور 21S سے کاروباری آزادی متاثر ہوگی اور تاجروں پر غیر ضروری دباؤ بڑھے گا۔ تاجروں کا مزید کہنا تھا کہ حکومت کے ان اقدامات کے خلاف آج دکانیں بند کرنے پر مجبور ہوئے تاکہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروا سکیں۔ مزید جان لیتے ہیں اپنی نمائندہ سامعہ سعید سے جو اس وقت مال روڈ کی مارکیٹ میں موجود ہیں۔ بتائیے سامعہ۔ جی بالکل، لاہور میں آج تمام چھوٹی بڑی دکانیں جو ہیں ان کو بند کر دیا گیا ہے۔ تاجر برادری کی جانب سے آج شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال دی گئی ہے، جبکہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ میں اس وقت جو ہوں وہ مال روڈ پر موجود ہوں اور یہاں پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ تمام تر دکانیں جو ہیں وہ مکمل طور پر بند ہیں۔ البتہ برانڈز کی جو دکانیں ہیں وہ یہاں پر کھلی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، اس کے علاوہ باقی تمام تر دکانیں جو ہیں وہ صبح سویرے سے ہی جو ہے وہ بند ہی دکھائی دے رہی ہیں۔ البتہ تاجر برادری کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تک ہمارے تمام تر مطالبات جو ہیں وہ پورے نہیں کیے جائیں گے، دکانیں جو ہیں وہ اسی طرح ہی بند ہی رکھی جائیں گی۔ حکومت کی جانب سے جو نئے ٹیکس قوانین متعارف کروائے جا رہے ہیں، حکومت پر جو ہے وہ یہاں پر شٹر ڈاؤن ہڑتال کر کے یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ تمام تر جو ٹیکس قوانین ہیں ان کو واپس لیا جائے، جن میں جو ہے وہ ایف بی آر کا سیکشن 37AA اور 21S شامل ہیں۔ البتہ یہاں پر جو ہے وہ تاجر برادری کی جانب سے آج تو ہڑتال کی کال دی گئی ہے، تمام مارکیٹیں بند ہیں، مال روڈ بھی جو ہے وہ اس وقت مکمل طور پر بند ہی دکھائی دے رہی ہے۔ یہاں پر خریدار بھی آ رہے ہیں مگر خالی ہاتھ جو ہے وہ واپس لوٹتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ البتہ تاجر برادری کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ حکومت ہمارے تمام تر مطالبات جو ہیں ان کو تسلیم کریں اور اگر جو ہے ان کو نہیں تسلیم کیا گیا تو اس کے بعد جو ہے وہ مظاہرے بھی کیے جائیں گے۔ تو البتہ آج تو لاہور میں یہی دیکھا جائے گا کہ تمام تر جو دکانیں ہیں وہ بند ہی رہیں گی، جبکہ تاجر برادری کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس طرح کے نئے قوانین جو ہیں وہ متعارف کروا کر جو ہے وہ ہم پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، خوف و ہراس پیدا کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ ہم یہ تمام تر جو قوانین ہیں ان کو نہیں مانیں گے۔ جی سامع ہمارے ساتھ رہے گا۔ ٹرانزیکشن ٹیکس اور ایف بی آر کو گرفتاری کا اختیار دینے کے خلاف تاجر برادری سراپا احتجاج۔
शटर डाउन हड़ताल कहीं कामयाब तो कहीं ताजरों ने हड़ताल की कॉल पर अमल दरामद नहीं किया। इशरा मार्केट में कुछ दुकानें खुली तो कुछ बंद हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं आतिफ परवेज़ से। बताइए आतिफ। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से जो ट्रांजैक्शन टैक्स लगाया गया था और उसके साथ साथ FBR को गिरफ्तारी का इख्तियार दिया गया था, इसके हवाले से ताजर तंजीमों ने आज मुल्क भर में हड़ताल की कॉल दी थी। इस पर अब जो है कुछ मार्केटें खुली हुई हैं और कुछ जो है वो बंद है। इस वक्त हम मौजूद हैं इचरा लाहौर की इचरा मार्केट में और यहाँ पर भी मिक्स जो है हड़ताल की कॉल पर अमल दरामद होता नज़र आ रहा है। कुछ दुकानें खुली हुई हैं और कुछ बंद है। तो एक ताजिर हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी क्या कहेंगे, आज हड़ताल की कॉल दी गई थी, मार्केट में कुछ दुकानें खुली और कुछ बंद हैं। कुछ तो भाईजान इधर तो 90% लोगों को पता ही नहीं हड़ताल किस चीज़ की है। ये तो इचरे बाज़ार में तो वैसे ही हड़ताल नहीं होती, तो हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। हमने अपनी शॉप खोल ली है, ठीक है, हड़ताल की कॉल आई नहीं हमें, ना ही हमें कोई पता है किस चीज़ की हड़ताल है। तो हड़ताल से वैसे कारोबार मुतासर हो? जी अब मुतासिर तो ज़ाहिर बात है होगा, जब TV पे खबर चलेगी कि मार्केटें बंद हैं तो बाज़ार में कस्टमर किधर से आएगा। ताजिर तंजीमों के सरबराहान को क्या कहें? वो उनका एका करें, फिर ही कुछ होना है, नहीं तो इस तरह तो 50 साल से हड़तालें कर रहे हैं, कुछ भी नहीं होना किसी। बिल्कुल, इचरा मार्केट जो ताजिर है उनसे बात हुई, उनका कहना है कि इधर तो ताजरान जो हैं उनको पता ही नहीं कि किस मामले पर हड़ताल की कॉल दी गई है और जो कोई मामलात हैं ताजरों को चाहिए कि वो हुकूमत से मिल बैठकर इसको हल करें। आपका शुक्रिया आतिफ। फाइनेंस बिल 2025 में ट्रांजैक्शन टैक्स पर गिरफ्तारी के इख्तियारात के खिलाफ ताजर बरादरी सरापा एहतजाज है। शहर की मुतअद्दिद मार्केटें बंद, कारोबारी सरगर्मियाँ मुअत्तल। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मियां अबूज़र शाद कहते हैं ताजर बरादरी टैक्स नहीं बल्कि इसके तरीक़ाकार के खिलाफ सरापा एहतजाज है। ट्रांजैक्शन टैक्स से महंगाई में मज़ीद इजाफा और आम आदमी मुतासिर होगा। मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे। तफसीलात जान लेते हैं फ़हद अमीन से। फ़हद बताइए। जी बिल्कुल, ट्रांजैक्शन टैक्स के खिलाफ आज लाहौर की ताजर बरादरी सरापा एहतजाज है। आज हड़ताल की कॉल दी गई थी और इस हड़ताल के क्या फ़वाइद होंगे, कितना जो है वो ताजर पुर उम्मीद है कि इस हड़ताल के बाद जो है वो उसे उसके जो उनके मुतालबात हैं वो मंजूर होंगे, इस हवाले से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मियां अबूज़र शाद। इनसे मज़ीद जानते हैं क्या कहना है इनका और अगर ये हड़ताल कामयाब नहीं होती तो फिर आइंदा क्या लाएमल होगा ताजर बरादरी का। अच्छा सर बताइएगा, आज भी हड़ताल की कॉल है, 21 को फिर हड़ताल की कॉल है। अगर हुकूमत आपके ये मुतालबात नहीं मानती तो फिर आगे आपके क्या जो है वो लाएमल क्या होगा? बहुत शुक्रिया जी। हम नहीं चाहते हड़तालें हों, मगर मजबूरी ये है कि ताजरों के साथ बहुत बड़ा जुल्म होने जा रहा है। जब तक हुकूमत हमारे पास नहीं आती, हमारे पास बैठ के नहीं मशावरत करती, हमारे साथ बाई लॉज नहीं बनाते, ये ताजरों की हड़ताल आज का प्रोटेस्ट बता देगा कि हम कितने यकजा हैं। कराची और लाहौर बंद है, हैदराबाद भी बंद है, आपका रेम यार खां भी बंद है और साहिवाल भी बंद है और ट्रांसपोर्टर भी सारे बंद हैं और सारी लोग हड़ताल में शामिल हो रहे हैं। ये इन्होंने कोशिश की है कि हमें डिवाइड करने की, मगर जो डिवाइड हो जाएंगे आपके सामने हैं। मगर पाकिस्तान की इकॉनमी का 80% कराची और लाहौर से जनरेट होता है। मैं समझता हूँ कि हुकूमत को होश के नाखुन लेने चाहिए, फौरी तौर पे हुकूमत को माशरावत के लिए आना चाहिए। हम आज की हड़ताल के बाद हुकूमत को फिर नोटिस देंगे कि अब हमारे मुतालबात मान लें, हमारे साथ बैठ के गेम के रूल तय करें कि किस तरह आप हथकड़ियाँ लगाने निकल पड़े हैं ताजरों को, ये ऐसा नहीं होने देंगे। हाँ, अलबत्ता टैक्स देना हमारा फ़र्ज़ है, पाकिस्तानी हैं, टैक्स देंगे तो मुल्क का निज़ाम चलेगा। आज बिल्कुल आपने सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि हुकूमत को मुतालबात मानने पड़ेंगे, उस वक़्त तक जो है वो ताजर बरादरी आराम से नहीं बैठेगी और एहतजाज जो है वो जारी रखा जाएगा। जी आपका शुक्रिया फ़हद। शहर में शटडाउन हड़ताल अंजुमन ताजरान लाहौर की क़यादत कहती है ताजर मुत्तहिद हैं, हुकूमती पॉलिसियों से परेशान हैं। कामयाब हड़ताल ने साबित कर दिया है कि FBR के कवानीन कारोबार के लिए दुरुस्त नहीं हैं।
अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद बट ने दीगर अहदेदारों के हमरा शाह आलम मार्केट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, ताजर बरादरी ने अपना इत्तेहाद साबित कर दिया। हम अपने हक के लिए यकसा हैं। मार्केटों में ताजरों को हिरासा न किया जाए। जो कहते थे हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं, देख लें तमाम बड़ी मार्केट्स बंद हैं। खुदारा ये मत समझें कि ये एक दिन की हड़ताल होके कि ताजर जो है खामोश हो जाएंगे। ये टोकन हड़ताल थी। आज ताजर बरादरी ने ये साबित कर दिया कि हम अपने हक के लिए यकजा हैं और इसे किसी सूरत ये इस जुल्म को, इस कानून को हम अपने पे लागू नहीं होने देंगे। अंजुमन ताजरान के मरकजी रहनुमा अब्दुल रज़ाक बब्बर और तैयब मीर ने कहा, ताजर बिला तफरीक तंग हैं, मुश्किलात का शिकार हैं। हुकूमत खुदारा ताजर बरादरी के लिए सहूलत दे, ना कि मुश्किलात। कोई मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए। गरीब बंदा गरीब तर होता जा रहा है, अमीर बंदा अमीर तर होता जा रहा है। ये सारे मामला है। आस्ता आस्ता गरीब बंदे का सोचना चाहिए, कारोबार को वसी करना चाहिए। हत्ता कि कारोबारों को वसी करने की बजाय हुकूमत हमारी ऐसे है कि कारोबारों को कमतर करती जा रही है। हमारी जो है ना जो जड़ें जो है मजबूत नहीं है। एक बंदे एक बुनियाद मजबूत ना हो, आप उस पर इतना बर्डन डाल दें, वो कैसे पॉसिबिलिटी है कि वो कंप्रोमाइज़ करें। इस मौके पर सदर निस्बत रोड कैमरा मार्केट हाजी राहत अली, हाफिज अलाउद्दीन और अजहर खान समेत दीगर मार्केट्स का रहनुमा और अहदेदार भी मौजूद थे। यहाँ वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का, लेकिन उससे पहले लाहौर न्यूज़ फटाफट। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का फ़ज़ाई सफ़र को महफूज बनाने का मिशन इंतज़ामी इदारों को एयरपोर्ट्स के करीब वाक़े हसास मकामात 30 जुलाई तक क्लियर करने की डेडलाइन दे दी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर नो बर्ड जोन में ऑपरेशन तेज़, एयरपोर्ट से गिर्द 8 किलोमीटर का इलाका क्लियर करने का अमल जारी। परिंदों से हवाई हादसात के खदशे के पेश नज़र हसास जोन में कचरा फेंकने पर मुकम्मल पाबंदी आयद। ब्यूरो चीफ हसन रज़ा से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। हसन बताइए। हसन से इस बारे अपडेट लेंगे। आपको बता रहे हैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का फ़ज़ाई सफ़र को महफूज बनाने का मिशन इंतज़ामी इदारों को एयरपोर्ट से करीब वाक़े हसास मकामात 30 जुलाई तक क्लियर करने की डेडलाइन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर नो बर्ड जोन में ऑपरेशन तेज़, एयरपोर्ट से गिर्द 8 किलोमीटर का इलाका क्लियर करने का अमल जारी। जबकि परिंदों से हवाई हादसात के खदशे के पेश नज़र हसास जोन्स में कचरा फेंकने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। डेप्यूटी कमिश्नर सैयद मूसा रजा की ज़ेर सदारत इजलास नो बर्ड जोन की पेशरफ का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर शालामार, LWMC लाहौर, वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड के नुमाइंदगान ने ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि फ़ज़ाई सफ़र को महफूज बनाने के लिए परिंदों के खतरात ख़त्म करना तरजीहात में शामिल है। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा की ज़ेर सदारत इजलास नो बर्ड जोन की पेशरफ का जायजा लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर शालामार, LWMC लाहौर, वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड के नुमाइंदगान ने ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि फ़ज़ाई सफ़र को महफूज बनाने के लिए परिंदों के खतरात ख़त्म करना तरजीहात में शामिल है। ये मनाजिर भी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि नो बर्ड जोन की पेशरफ का जायज़ा लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रज़ा की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। इजलास का मज़ीद अहवाल जान लेते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। इमरान बताइए। एयरपोर्ट के जो मलिका इलाके हैं वहाँ पे नो बर्ड जोन का जो है वो उसका ऐलान कर दिया गया है। अब इसके हवाले से डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। इजलास में नो बर्ड जोन की पेशरफ का जायजा लिया गया है, जिसमें तमाम असिस्टेंट कमिश्नर को मदऊ किया गया है। उनको ब्रीफिंग की गई है कि वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड के नुमाइंदगान ने ब्रीफिंग दी, जिसमें प्रवासी रास्तों में परिंदों की मौजूदगी संगीन मसला है। डिप्टी कमिश्नर और सैयद मूसा रज़ा का कहना है कि फ़ज़ाई सफ़र को महफूज बनाने के लिए परिंदों को खतरात ख़त्म करना तरजीहात में शामिल है। नो बर्ड जोन का सख्त नफाज और अमी हिफाजत के लिए ज़रूरी है, जबकि हसास इलाकों की सफाई के लिए तमाम फरीकों को साथ मिलकर काम करना होगा। नो बर्ड जोन में कचरा फेंकने पर पाबंदी आयद और जुर्माना होगा, जबकि परिंदों के घोंसले हटाने के ऑपरेशन निगरानी की जा रही है। महदूद इलाकों में परिंदों को जो है खुली फजा में दाना डालने पर पाबंदी आयद है, जबकि डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने हवाई अड्डों के करीब परिंदों से पाक माहौल के लिए तावन की अपील की है। तमील के लिए बाकायदा मुआयना और ऑपरेशन जारी रहेंगे। लाहौर के फ़ज़ाई हदूद महफूज बनाने के लिए इंतजामिया पूरा दम है। जी, आपका बहुत शुक्रिया इमरान। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फ़ेज़ 1 और 2 के लिए नई डेडलाइन मुकर्रर। वासा को 30 अगस्त तक 82 तरक्याती स्कीमें मुकम्मल करने का हुक्म। MCL को 4 माह में 3050 मनसूबे मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी गई। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फ़ेज़ 2 के लिए खुदाइयाँ करने से रोक दिया गया। बारिशों के दौरान LDP फ़ेज़ 2 के लिए तामीराती मटीरियल और पाइप की तैयारी की जाएगी। ज़ैनुल आबदीन से मज़ीद जानते हैं, बताइए ज़ैन। ये लाहौर का सीपरेज और वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने के लिए शुरू किए गए लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम
फेज 1 की तकमील में तखीर के बायस पंजाब हुकूमत ने मंसूबे के लिए नई डेडलाइंस मुकर्रर कर दी हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हदायत पर महकमा हाउसिंग ने फेज 1 की स्कीमों की तकमील के लिए नया शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक वासा को लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज 1 की 82 स्कीमें 30 अगस्त तक मुकम्मल करने का टास्क दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक वासा अब तक फेज 1 की 170 स्कीमों पर तामीराती काम मुकम्मल कर चुका है, ताहम बारिशों और गैर हकीकी डेडलाइन की वजह से मुतअद्दिद स्कीमें ताखीर का शिकार हुई। दूसरी जानिब मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन लाहौर को फेज 1 के तहत अपने तरक्याती काम 30 नवंबर तक मुकम्मल करने की हदायत जारी की गई है। MCL को अगले 4 माह में 3050 स्कीमें मुकम्मल करना होंगी। दूसरी तरफ लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के फेज 2 के आगाज के लिए भी पंजाब हुकूमत ने इकदाम तेज कर दिए हैं। ज़राए के मुताबिक आइंदा हफ्ते फेज 2 के लिए फंड जारी किए जाने का इम्कान है। हुकाम को बारिशों के दौरान खुदाई से रोक दिया गया है, जबकि इसी दौरान तामीराती मटीरियल और पाइप की तैयारी का काम जारी रहेगा ताकि जैसे ही मानसून की बारिशें खत्म होती हैं गहरी खुदाइयां करके लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज 2 के तहत सीवरेज वाटर सप्लाई के काम दोबारा शुरू किए जा सकें। आपका शुक्रिया ज़ैन। सूबाई वज़ीर लाइफ स्टॉक और ज़राअत सैयद आशिक हुसैन करवानी की ज़ेर सदारत इजलास सैलाब की सूरत हाल के बायस महकमा लाइफ स्टॉक के हंगामी प्लान पर अमल दरामद का जायज़ा लिया गया। सूबाई वज़ीर का कहना था कि लाइफ स्टॉक का कार्ड फेज़ 2 में मजमूई तौर पर 3 लाख जानवरों के लिए बिला सूद कर्ज जारी किया जाएगा। अब्दुल कादिर से मज़ीद जानते हैं, बताइए अब्दुल कादिर। जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीर लाइफ स्टॉक व ज़राअत सैयद आशिक हुसैन करमानी की ज़ेर सदारत लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट में अहम इजलास हुआ। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक पंजाब अहमद अजीज तालिब ने शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब लाइफ स्टॉक कार्ड फेज 1 की रिकवरी प्रोसेस, लाइफ स्टॉक कार्ड फेज 2 देही खवातीन में असासाजात की तकसीम के दूसरे मरहले और वज़ीर आला के दूसरे इनिशिएटिव मंसूबों पर पेशरफ्त और टाइम लाइन का जायजा लिया गया। इजलास में पंजाब में सलाह की महकमा लाइफ स्टॉक के हंगामी प्लान पर अमल दरामद का भी जायजा लिया गया। इस मौके पर सूबाई वज़ीर लाइफ स्टॉक पंजाब का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब के लाइफ स्टॉक सेक्टर में कामयाब मंसूबों के समराज से मवेशी पाल किसान मुस्तफीद हो रहे हैं। लाइफ स्टॉक फार्मर्स के माशी हालात में बेहतरी आई है। वज़ीर आला लाइफ स्टॉक फेज 1 की 95% रिकवरी करने पर तमाम रीजनल डायरेक्टर्स और अफसरान को शाबाश देता हूँ। इस हवाले से उनका ये मजीद कहना था कि लाइफ स्टॉक कार्ड फेज 2 में मजमूई तौर पर 3 लाख जानवरों के लिए बिला सूद कर्ज जारी किया जाएगा। एक मवेशी पाल किसान के लिए जानवरों की तादाद बढ़ाकर 20 से 5 से 20 के दरमियान कर दी गई है और लाइफ स्टॉक कार्ड फेज 2 के लिए अब तक 1,50,000 से जायद दरख्वास्तें वसूल हो चुकी हैं। अर्बन यूनिट ने अब तक 1,61,000 एनिमल्स की फिजिकल वेरिफिकेशन भी मुकम्मल कर ली है, जबकि लाइफ स्टॉक कार्ड के लिए हर नया जानवर टैग्ड होगा। जनूबी पंजाब के 12 जिला के देही खवातीन में स्कीम फेज 2 के प्रोग्राम में 5,500 जानवर जो हैं वो तकसीम किए जाएंगे और इस हवाले से उनका कहना था कि जो लाइफ स्टॉक असासाजात की तकसीम सिलसिले में अब तक 58,000 से ज्यादा वसूल हो चुकी हैं। आपका बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। ज़ेर तमीर प्लाजो में हिफाजती SOPs में कोताही का मामला, DGLDA को मुतल्लिका साइट्स बारे रिपोर्ट 24 घंटे में जमा करवाने का हुक्म। तर्जुमान महकमा हाउसिंग के मुताबिक तामीराती SOPs की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहरियों के जानो माल की हिफाजत अव्वलीन तरजीह, जिम्मेदारों का तयन किया जाए। ज़ैनुल आबदीन से मज़ीद जानते हैं, बताइए ज़ैन। ज़ैन अगर सुन पा रहे हैं तफसीलात से आगाह कीजिए। ज़ैन से इस बारे अपडेट लेंगे। ज़ेर तमीर प्लाजो में हिफाजती SOPs में कोताही का मामला है। DGLDA को मुतल्लिका साइट्स बारे रिपोर्ट 24 घंटे में जमा करवाने का हुक्म। तर्जुमान महकमा हाउसिंग के मुताबिक तामीराती SOPs की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहरियों के जानो माल की हिफाजत अव्वलीन जिम्मेदारी है और इस हवाले से ज़िम्मेदारों का तयन भी किया जाएगा। ज़ेर तमीर प्लाजो में हिफाजती SOPs में कोताही का ये मामला है। DGLDA को मुतल्लिका साइट्स बारे रिपोर्ट 24 घंटों में जमा करवाने का हुक्म जारी किया गया। तर्जुमान महकमा हाउसिंग के मुताबिक तामीराती SOPs के खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहरियों के जानो माल की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है, जबकि ज़िम्मेदारों का तयन भी किया जाएगा। ज़ेर तमीर प्लाजो में हिफाजती SOPs में कोताही बारे ये फ़ैसला किया गया है। DGLDA को मुतल्लिका साइट्स बारे रिपोर्ट 24 घंटे में जमा करवाने का हुक्म जारी किया गया। ज़ैनुल आबदीन से मज़ीद जानते हैं। ज़ैन बताइए इस बारे। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के शोबा टाउन प्लानिंग की तरफ से मुबैना तौर पर गफलत और कोताही का मुजाहरा किया गया है, जिसकी वजह से शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर गहरी
जो खुदाइयाँ हैं वो खोदी जा चुकी हैं, ना ही इनके बिल्डिंग पीरियड मुकम्मल होने पर इनकी तमीरात को मुकम्मल किया गया, ना ही किसी तरह की कोई FIR दर्ज करवाई गई। यही वजह है कि जो इस वक्त मानसून का मौसम चल रहा है, इनमें ये जो गहरी खुदाइयाँ हैं किसी बड़े जो हादसे हैं उसका सबब बन सकती हैं। अभी 4 रोज कबल जब लाहौर में 182 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी, तो उस वक्त गुलबर्ग के बी ब्लॉक में फैमिली पार्क के नजदीक गहरी खुदाई ने सड़क को अपने लपेट में ले लिया था। इसी तरह की और भी जो बेसमेंट हैं जिनको खुदाई करके लावारिस छोड़ दिया गया है, उनकी तादाद दर्जनों में है। तो अब ये जब मामला मंजर आम पर आया तो फैक्ट्री हाउसिंग नूरुल अमीन मैंगल की तरफ से जेरे तमीर प्लाजों में तमीराती SOPs में खुदाई पर नोटिस लिया गया है, जिसके बाद DG LDA को मुतलका साइट्स और इलाकों बारे तफसीली रिपोर्ट 24 घंटे में जमा करवाने का हुक्म दिया गया है। तर्जुमान महकमा हाउसिंग के मुताबिक तमीराती SOPs की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहरियों के जानो माल की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है और जिम्मेदारों का तयन भी किया जाएगा। तर्जुमान महकमा हाउसिंग की तरफ से अपने जारी एलामिये में कहा गया है कि जेरे तमीर साइट्स पर डस्ट फ्री SOPs का इतलाक भी यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर तामीराती SOPs और हिफाजती इक़दामात को यकीनी बनाया जा रहा है ताकि किसी तरह का कोई हादसा पेश न आए। आपका बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबदीन। ख़बरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि पंजाब भर में 5051 स्कूल सरबराहान को टेस्ट की बुनियाद पर इंचार्ज हेड तैनात करने का फ़ैसला है। 3797 असातिज़ा ने दरख्वास्तें जमा करवाई हैं। इंचार्ज हेड तैनाती के लिए ज़िला सतह पर टेस्ट 22 जुलाई को लिया जाएगा। टेस्ट देने वालों में SSTs, AEOs, हेडमास्टर, प्रिंसिपल्स शामिल हैं। मज़ीद जानते हैं आतिफ परवेज़ से। बताइए आतिफ। जी बिल्कुल, पंजाब के सरकारी स्कूलों में हेड लगने के लिए 551 स्कूल सरबराहान को टेस्ट की बुनियाद पर जो है ये हेड लगाया जाएगा। पंजाब भर में 3797 असातिज़ा और हेड ने इंचार्ज हेड के लिए दरख्वास्तें जमा करवाई है। इंचार्ज हेड तैनाती के लिए जिला सतह पर टेस्ट 22 जुलाई को पंजाब भर से होंगे। लाहौर में टेस्ट का इनेकाद बॉम्बमिट कम्प्रीहेंसिव गर्ल्स स्कूल वागदुर पर होगा। टेस्ट देने वालों में SSTs, AEO, हेडमास्टर, प्रिंसिपल शामिल है। लाहौर में हेड की तैनाती के लिए 200 मर्द ख़वातीन ने दरख्वास्तें जमा करवाई हैं। दरख्वास्तों की स्क्रूटनी का अमल जारी है। लाहौर में ग्रेड 17, 18, 19, 20 की 50 से ज़ायद हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल में हेड की पोस्टें खाली। जी आपका शुक्रिया। DC लाहौर की ज़ेर निगरानी शहर में तजावुज़ात के खिलाफ बिला तातुल कार्रवाइयाँ। गुलशन रावी, ठोकर न्याज़ बेग समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ग्रैंड ऑपरेशन, 27 ट्रक सामान जब्त, 2 मुकदमात दर्ज किए गए। सैयद मूसा रज़ा का कहना था कि तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। शहर की पायदार तरक्की के लिए तजावुज़ात का खात्मा एक पॉलिसी ही नहीं बल्कि ज़रूरत है। आपको बता रहे हैं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तजावुज़ात के खात्मे के लिए ऑपरेशन किया जा रहा है। DC लाहौर की ज़ेर निगरानी ये ऑपरेशन किया जा रहा है और बिला तातुल कार्रवाइयाँ जारी हैं। गुलशन रावी, ठोकर न्याज़ बेग समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ग्रैंड ऑपरेशन, 27 ट्रक सामान जब्त, 2 मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। जबकि सैयद मूसा रज़ा का कहना है कि तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा और शहर की पायदार तरक्की के लिए तजावुज़ात का खात्मा एक पॉलिसी नहीं बल्कि शहर के लिए ये ज़रूरत है। आपको बता रहे हैं कि DC लाहौर की ज़ेर निगरानी ये तजावुज़ात के ख़िलाफ़ बिला तातुल कार्रवाइयाँ जारी हैं। अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम में दाखिलों का मामला पंजाब यूनिवर्सिटी के ज़ेर तमाम। दूसरे मरहले में दाखिलों के लिए एंट्री टेस्ट कल मुनक्किद होंगे। दूसरे मरहले में 32,000 तलबा ने रजिस्ट्रेशन करवाई। मुल्क के 20 अहम शाहराहों में दाखिला टेस्ट के लिए इम्तहानी मराकज़ कायम किए गए। मुल्क भर में 114 इम्तहानी मराकज़ में दाखिला टेस्ट लिया जाएगा। मज़ीद जान लेते हैं आतिफ परवेज़ से। बताइए आतिफ। जी बिल्कुल, पंजाब यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम में दाखिलों के लिए कल जो दूसरे मरहले में एंट्री टेस्ट मुनक्किद किए जाएंगे। दूसरे मरहले में 32,000 तलबा ने रजिस्ट्रेशन करवाई है। पहले मरहले में 33,000 से ज़ायद तलबा और तालिबात ने एंट्री टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई थी। मुल्क के 20 अहम शहरों में दाखिले टेस्ट के लिए इम्तहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। इस्लामाबाद, कराची, कोयटा, पेशावर, गिलगित, स्कर्दू में इम्तहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। मुल्क भर में 114 इम्तहानी मराकज़ में दाखिला टेस्ट लिया जाएगा। तमाम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में दाखिलों के लिए 7 किस्म के एंट्री टेस्ट लिए जा रहे हैं। अंडर ग्रेजुएट दाखिलों के लिए 25% जो नंबर है एंट्री टेस्ट के लिए वो मुख्तस किए गए हैं। तलबा ताल्लुकात की सहूलत के लिए 2 शिफ्टों में एंट्री टेस्ट लिया जाएगा। न्यू कैंपस में रहनुमाई कैंपस शटल सर्विस की भी सहूलत दी गई है। जी आपका बहुत शुक्रिया।